Welcome to Smile with English. So, as you can see in the picture, children, so what can you see? Yeah, so we can see a lot of pollution is water pollution, isn't it? It's a picture of water pollution. So, again and again, we see people are not taking the problem seriously. So, every day, people throw garbage and many chemicals in the river and they just pollute the whole environment. So main cause of global warming is pollution, and water pollution is also one of the factor. So what can we do to stop pollution? Yeah. So this is a very important question, and there are many ways also by which we can stop this water pollution. So we can just go through a story and we can understand what are the effects of water pollution. Okay, so now let's start the story. So the name of the story is The God of River, and the main character of the story is here is Ramesh. He's a small boy. So now let's start the story. The God of River. The story is The God of River. Once there was a small village called Dhampur. Ishan, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. So there was a village named Dhampur, और वहाँ पे कौन रहता था? किसान नाम का एक फार्मर था, वो वहाँ पे रहता था एक विलेज में, गांव में. He had a son Ramesh. Ramesh was 11 years old. So उसका एक लड़का भी था और उसके बेटे का नाम क्या था? रमेश. और वो 11 years का था, 11 साल का था. Kishan went to the fields for farming and Ramesh went to a school near the village. Whenever Ramesh's mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. He collected the garbage and threw it into the river that flowed near their cottage. This was his daily routine. So किसान जो था वो फील्ड्स में जाता था, खेती बाड़ी करता था, एंड रमेश जाता था स्कूल में, और उसके जो स्कूल था वो विलेज एकदम गांव के पास ही था. तो जब भी रमेश की मदर अपना जो घर है वो साफ़ करती थी, तो जो भी उसमें से जो भी गार्बेज जो भी निकलता था, तो उसको वो कहाँ पे उसको बोलता था कि बोलती थी कि आप ये इसको गार्बेज को आप कहीं पे फेंक देना. तो ये रमेश क्या करता, ये सारा गार्बेज उठा के वो उस नदी में फेंक देता था. ठीक है. So this was his daily routine. ये उसका डेली रूटीन था. Many other families also did the same. The place where people threw the garbage became very dirty and smelly, but nobody bothered. तो वो ऐसे सारे फैमिलीज ही ऐसे करते थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ पे जो जगह था बिल्कुल ही सारे जो फैमिलीज है वहाँ पे गंदी सारी चीज़ें वहाँ पे फेंक रहे हैं, सारे कूड़ा वहीं पे डाल रहे, तो उस जगह बहुत ही गंदा भी हो गया एंड बहुत स्मेली, मतलब बहुत बदबू आने लगा वहाँ से. बट किसी को भी कोई फिक्र नहीं थी इस बारे में. One day when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown come out of the river. So एक दिन जैसे ही रमेश वो कूड़ा फेंकने गया था उस रिवर में, तो उसको एक आदमी दिखा, वो एक सोने का मुकुट पहना हुआ था. He was tall and fair and held a golden pot full of water in his hand, but he looked very sad. Ramesh felt scared, but he soon took courage and asked the person who he was and why he was so sad. So उसको थोड़ा सा तो घबराहट हो गया था, पर फिर भी उसने जाके उससे पूछा कि क्या हुआ है, आप इतना ज़्यादा नाखुश क्यों लग रहे हो. The person said slowly, I am the god of water. I have been living in the river for many years. I am sad because you are always throwing garbage into my water and polluting it. So मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ क्योंकि तुम रोज़ आते हो और यहाँ पे सारे कूड़ा मेरे ही ऊपर आप फेंकते हो. सो दिस रिवर हैज़ नाउ बिकम वेरी डर्टी. से जो रिवर है बिल्कुल ही गंदा हो गया है. वट डू यू मीन बाय पोल्यूटिंग वाटर, आस्क्ड रमेश. तो इसका मतलब क्या है, पोल्यूटिंग वाटर का मतलब क्या है. So the water god said, when you throw garbage into the water, it gets dirty. This garbage contains chemicals and plastics which are very harmful for the fish. It has germs too. If someone drinks this water, he or she may catch diseases like typhoid and jaundice. So water god क्या बोलने लगा कि आप जो ये कूड़ा फेंकते हो
तो ये पूरा जो पानी है ये पूरा दूषित हो जाता है और इसमें आप केमिकल्स भी फेंक रहे हो, प्लास्टिक भी फेंक रहे हो, वो सारा कुछ बहुत हार्मफुल होता है। जो यहाँ पे मछली होते हैं उनके लिए जहर का काम कर रहा है और इसमें जर्म्स भी होते हैं। तो कोई भी आदमी अगर इसमें से पानी पीता है तो क्या होगा, उसको डिजीज़ेस जैसे ये टाइफॉइड और जॉन्डिस की बीमारी हो जाएगी। So Ramesh was surprised to know all this. He felt guilty for polluting the river so much. He took his garbage and went back to his home. तो रमेश को ये सब कुछ सुन के बहुत ही वो सरप्राइज़ हो गया था और उसको थोड़ा सा ख़राब, मतलब उसको अच्छा भी नहीं लगा ये सुन के कि वो रोज़ ही रोज़ ऐसे दूषित कर रहा है इस रिवर को। सो ही टुक हिज गार्बेज, उस दिन वो कूड़ा लेके घर चला गया वापस। नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू द स्कूल एंड शेयर द एक्सपीरियंस with his friends and his teacher. The teacher gave him more information about water pollution. तो जैसे नेक्स्ट डे रमेश स्कूल गया तो वहाँ पे भी उसने अपनी जो एक्सपीरियंस उसको शेयर किया अपने दोस्तों के साथ और अपने जो टीचर के साथ भी शेयर किया। टीचर ने उसको बोला सारा कुछ कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट water pollution. The teacher said we throw domestic and industrial waste, flowers and so many other things into the river. These things pollute the rivers and make them dirty. तो हम लोग जैसे रोज़ रोज़ हम लोग घर का कचरा वगैरह सारा कुछ फेंक रहे हैं और फैक्ट्री में से भी, इंडस्ट्री में से भी कितना सारा वेस्ट जो होता है वो भी हम लोग यहाँ पे रिवर में फेंकते, तो वो सारा कुछ बहुत ही दूषित होता है। वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन? तो रमेश पूछ रहा है कि कहाँ पे हम लोग ये जो कूड़ा होता है कहाँ पे फेंके? द टीचर रिप्लाइड, डिग अ पिट आउटसाइड योर हाउस एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू दैट पिट। तो आप एक गड्ढा खोदो बाहर, आपके घर पे के बाहर एक गड्ढा खोदो और उसमें सारा जो आपका कचरा होता है उसमें डाल दो। व्हेन द पिट इज़ फुल कवर इट विथ लीव्स। जब वो जो गड्ढा है जब पूरा भर जाएगा तो उसको जो है पत्ते से उसको ढक दो। लीव इट फॉर अ फ्यू डेज, द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्योर, योर फादर कैन यूज द मैन्योर इन हिज फील्ड्स। रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट the idea. His father dug a pit the same day and they started throwing the garbage into the pit instead of throwing it into the water. So टीचर ने बोला कि और आप क्या करोगे, लीव्स को ऐसे रख के फिर उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रख दो, फिर जो है जो गार्बेज है जो कूड़ा है आपका वो एक मैन्योर, ठीक है, मैन्योर बन जाएगा और आप अपने पापा को बोलना है कि वो मैन्योर अपने खेत में दे दे, ठीक है, वो प्लांट्स क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। तो रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट द आइडिया, हिज फादर डग अ पिट। वैसे यही आइडिया सुन के रमेश बहुत खुश हो गया और उसके पापा ने वैसे ही किया, एक गड्ढा खोदा है और उसमें सारा गार्बेज जो है जो भी कूड़ा वगैरह था जो उसी में डाल दिया और उन्होंने रिवर में नहीं डाला, नदी में नहीं डाला, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी।